Okay, Great. so today we are going to talk about, not talk about, but today it's more about having a question and answers on the concept of twin flame. I will not get in the details of this thing because we have already covered it in three, four conversations before. We shared the link of that playlist also. So instead of using that time to repeat all that again, we will talk about those who already identify themselves on this journey and have questions regarding it. If you have no idea what this is and what we are talking about, then perhaps this conversation is not for you at this stage because you first need to watch the other videos and get familiar with it. So this is more for those who already identify with this concept and have questions about it. So Amrita, yes, go ahead. Yes, as per this, I have got to know this from your previous video. So I just want to know even uh, twin flames will meet in person at first, or because I have I have not been in this state because I haven't never met anybody like this. I heard stories of people meeting in separation and all. I never met this person, but I'm in separation, so I just want to know what exactly is this. Hmm, I'm not clear about your question. So No, but what do you like want? as I got this discussion done in this previous video, saying that people will these twin flames will meet, then get separated and all. So Mhm. without even meeting, also the separation happens. Without meeting, it's separation only. Oh no, So if you are not meeting, then you are already separated. Without meeting, separation happens. I meetings didn't understand. which I just had not conversation. I just had one-sided. Uh, mm, mm, what I say, I have just thought this person is my twin flame. I just messaged him. He never responded back to me. And I thought this is my twin flame. Mhm. So, Okay. but he never responded back. I just I thought this is not the way I think correct. Uh, it's very hard to actually then even think that it is the case or not. So until you have met and until those signs that we talked about in those videos, the signs that you notice and Uh, the phases that you go. So until you can observe the signs and all that, so it's not possible to conclude anything. yeah. Hmm. Hmm. Very hard to conclude and say anything if you have not met and experienced it. You first have to observe the signs because it's possible that you just uh, you miscalculated as that. Miscalculated. Hmm. So you just have to first observe the signs that we talk about. So yeah, so then only you will know. Then how would I get to know he's that person? Because I have no idea. Uh, you get to see these kind of Signs, the signs that we I, talk about. That's what I'm saying. So when you meet this kind of person, there are certain signs that you will get, and I talked about those signs. So you observe those signs. That's how you will know. okay. Fine, Akama. Thank you. Hmm. Hmm. No problem. Rupali, you want to ask? So Akarma, I wanted to ask, if you know that a particular person is your twin flame and you are going on that journey and everything, and then there is a separation, and then suddenly you start questioning again that whether it's really a twin flame or is it a karmic partner. So how can we differentiate on that? And secondly,
I think, yeah, that's my question. Um, they could look like very similar in the beginning. So it is possible, and many a times that happens that they both look the same. So difference is that when you are working on yourself and you are doing your own work, your own self work, then if the other person is neither doing any work on themselves nor you are experiencing any change in that person, then most likely it's a karmic part. Okay, so basically, we'll get to know again when the union happens, and if you see the difference, that's when you will get to know because right now there is separation. Yeah, exactly. Oh, That is how you will know that if the person has also evolved. So the whole point of separation is to evolve. correct. So separation in normal relationships are more around just two people are too hurt to be with each other and then they separate. But in this particular scenario, two people intuitively get guided that they need to do some work on themselves. And as they work on themselves, then they both feel like coming back together. And and that's the sign. So both of them have to work on each other. But if one is working, the other one is not working on themselves, then most likely it's a karmic relationship. Okay. Can I just ask one question related to this same thing? Like, um, I somehow I am now getting a feeling that it is karmic because I had some connection with him during the earlier lifetime. So I was thinking that maybe it is karmic. So is that one of the sign that it could be karmic, not a twin flame? I didn't understand what sign you are talking about. Like basically, I got to know that I had some karmic. Basically, I had a connection with this person in the earlier lifetime. So that's what I wanted to check. Like, is it a sign that it's a karmic and not a twin flame? Mm, no, not really. That's not a Okay, sign. okay, okay. Thank you so much. Okay, no problems. Sonam, you have a question? Yeah. Hi, good evening, Karma. Good Uh, evening. yeah, my question is on the same lines which Amrita and Rupali has have already asked, but I just want to get little clarification. So the first is like, how do we identify that person is our twin flame or soulmate or it's a karmic relationship? So that I have covered in lot of details already in previous conversations. So Okay. that's something which I will Okay. not cover now. Okay. I Like we missed went that. into Okay. uh, Yeah. yeah, it's in our YouTube channel, Okay, okay, and I'll check. Anamika shared the link of it as well today. Okay, okay, I'll So check it. those conversations are already there. Okay, That okay, talk about the difference between these three and the signs that you need to check and all that. okay, okay, Akarma. Yeah, that was my question. I'll check that. Thank you. Okay, no problems. Yeah. So today's session is Q&A only. I don't really have anything from my side. So if anybody else has any questions, then feel free to ask. Yes, Sangeeta, you want to ask something? Sorry, I don't have any question. By mistake, I think I just clicked on it. Okay. Anyone else has any question regarding this?
You all wanted to have a discussion. Many of you wanted to have a discussion on this one. So that's why we are conducting this. Yes, Rupali. Like, I'm not sure if this would be the right platform to ask, or whether I should be watching the videos. Haven't got a chance to go through the videos yet, but I would just Mhm. like to understand what's the purpose basically, why like two souls, basically this one soul choose to have two different bodies, and why they would like to have it on the same timeline, in the same like at the same time, basically why they would incarnate in this lifetime. What's the purpose basically for this? Mhm. That also I have covered in that conversation where I talk about difference between karmic partner, twin flame, and soulmate. So that is also covered in quite a depth there. Okay, okay, I will go through that. Thank you. Mhm. The reason being that we have already conducted 3 or 4 conversations on this topic, especially, and many of you guys were not part of this community at that time. And this is the reason why we shared those links with you earlier, because it just if we keep talking the same thing, then the channel just gets filled with redundant conversations. So um, so that's why we have shared the link many a times when this topic came up. I kept sharing the link that this is covered here, this is covered here. So today's objective was people who have watched those conversations and still something is unanswered there. Still they feel I still didn't understand this, or I still have this question or that. Then today we wanted to conduct that kind of conversation. So yes, Deepika, go ahead. So my query is it possible to have spiritual awakening kindled by a karmic partner as well, or is it only done by a twin flame? No, no, it is. It can be. You can have a spiritual awakening by anyone. Okay. So yeah, definitely, karmic partners can do that as well. So the reference to my query is that getting a spiritual Your awakening kindled. voice is not very clear. It's got a lot of Just a echo, a minute. lot of bass. Is it clear now? Yes, much better. So my question is uh, like having a spiritual awakening kindled in the sense feeling the electricity flowing from root chakra to upwards after meeting someone or engaging with someone, and then regularly seeing angel numbers, some dreams, and feeling the energies of that person, as in whatever that person is feeling, same thing I am feeling, as if I'm the same person, I'm no different. So all these things, Hmm. and having the same history in terms of relationships and everything, and Hmm. having a rebound kind of thing, like that person has come back from the past. So all these things are can it be a sign of a karmic partner? Because I think it's a twin flame sign. Yes, can be sign of karmic partner. Like I said, that when we talk about the signs, then uh, if we are discussing, let's say I share 10 signs, then 10 signs, it's not that, okay, pick one of the 10 things. So we don't go by that. It's not like कि अच्छा 10 में से एक या दो हो रहे हैं तो मतलब ये हो गया, ऐसे नहीं होता है ये. When we are sharing 10 signs, then people who are going through such kind of experience, उसमें से 8, 9 or 10 signs will be matching. So 8 to 9 signs are matching. ऐसे एक दो तो किसी के भी मैच हो जाएंगे. सो सो उसको वैसे नहीं देखा जाता है कि साइंस हमने ये देख लिया कि
हमने 10 साइंस पढ़े और 10 में से एक या दो तो मैच हो रहे, तो किसी को तो कैसे भी मैच हो जाता है, वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है. तो don't very quickly conclude based on that. So see ki, many signs are resonating. So eight, 9 or sometimes 10 signs are matching. कम हो रहा है तो वो कोई वो बड़ी बात नहीं है, कम कम तो किसी के भी मैच हो जाते हैं. तो ये पहली चीज है कि डोंट वेरी क्विकली जस्ट कंक्लूड कि ऐसे है. और सेकंड थिंग कि यू आस्क कि हाँ, सो पॉसिबल है दो लोगों का कुछ बैकग्राउंड सेम हो एंड ऑल दैट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई टू पीपल फील अट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन अस. So that is Common in the sense, history is common, but then there is polar opposite. Uh, Polar oppositeness is there. I I I can't explain. It's a different push and pull kind of energy. हाँ, ठीक है, दैट्स फाइन. सो सी वही हम इंडिविजुअल केसेस पे तो only you are there to validate this. So we can only give you tests, we can only tell you check this, check that. Baki to you are there, you are the one who's experiencing it, and you have to be honest with yourself ki is this test passing or not passing. Abhi टेस्ट क्या होना चाहिए इस चीज के लिए वो मैं बता रहा हूँ. अगर आपको लग रहा है कि 10 में से 8 साइंस मैच कर रहे हैं तो ठीक है. फिर देन सेकंड थिंग इज, as I mentioned, that when there is a twin flame connection between two people, then both evolve, both of Okay, them both evolve, evolve. both of them Okay. work on themselves. Maybe the timeline could be different. One person could start working on themselves first, the other could start working on themselves later, but both of them evolve. Usually in karmic relationships that doesn't happen. Only one person who's had enough, जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इस कार्मिक रिलेशनशिप में, वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाता है. दूसरा पार्टनर जिसको कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो ऐसे ही बैठा रहेगा. जो जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत थी इस चीज में, वो उठ के तो वही काम करने लगता है अपने ऊपर. तो अगर दूसरा वैसे का वैसे ही बैठा है, उसने कभी कुछ रियलाइज नहीं किया है, उसको तो लगता है कि देयर इज नथिंग दैट दे नीड टू डू, दे आर ऑल फाइन, then this is a karmic relationship. That is what the signs are. So शुरू शुरू में ये दोनों चीजें बहुत सिमिलर लगती हैं, because there is a huge push and pull, or maybe sexual attraction, and a lot of things are common. शुरू में a lot of things are common between. So why it is common? There is a very, again, I have explained all these things in those videos. The reason it is common is because in early days, the twin flame relationship is also exactly same toxic as a karmic relationship. वो toxic के बाद ही clean होती है. But twin flame relationship in early days is extremely toxic relationship. How do you explain And many angel numbers, seeing angel numbers? it is possible that you have always been seeing it, but आज आपको ये मालूम पड़ा है तो अब आपके नोटिस में आ रहा है. So once again, as I said, कि angel numbers is fine, but make sure majority of signs are matching. एक चीज को पकड़ के मत बैठो. एक या दो साइंस, 3 साइंस तो किसी के भी मैच हो जाते हैं. आपको अगर हम 10 साइंस देंगे, रैंडमली आप पूछोगे, कोई भी अपनी रिलेशनशिप में बता देगा, हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है. 1 2 3 साइंस मैच होने कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबके हो जाते हैं. So you have to see कि और भी हो रहे हैं. So most signs should match. So it's so the people who are really on such kind of journey,
दे विल ऑफन टेल यू कि 9 या 10 मैच हो रहे हैं, सारे मैच हो रहे हैं। जो रियली में जो जिनका ऐसा चल रहा होगा ना, उनके सब मैच हो रहे होंगे, ऐसा 1 2 3 मैच नहीं होते, उनके सब होते। तो डोंट फोकस टू मच ऑन वन साइन एंड से कि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है। एंड या दैट्स ऑल आई कैन से कि बी वेरी व्हाई आई एम सेइंग दिस कि कई बार लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इनिशियल डेज में बहुत टॉक्सिक रहती हैं एंड पीपल वेरी क्विकली जज कि ऐसा है, और उसकी वजह से दे स्टार्ट टेकिंग दैट टॉक्सिसिटी एज पार्ट ऑफ द, वो मतलब प्रसाद की तरह लेना शुरू कर लेते कि ये तो पार्ट ऑफ द पैकेज है, ये तो ऐसा तो है ही, क्योंकि उन्होंने सेल्फ डायग्नोस करके सेल्फ कंक्लूड कर लिया कि ये यही है, ये ट्विन फ्लेम ही है और ये तो ऐसा तो होता ही है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो नहीं होगी और द अदर पर्सन इज रियली अ टॉक्सिक एंड अब्यूजिव पर्सन, यू विल कीप गोइंग अलोंग विद इट, थिंकिंग कि ये तो ट्विन फ्लेम है, ये तो आगे ठीक हो जाएगा, या ये तो आगे ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला उसमें। इट्स अ टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड दैट्स व्हाट इट इज। यू आर जस्ट ओवरलुकिंग इट, यू आर कॉलिंग समथिंग एल्स एंड होपिंग कि ये एक दिन ये ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइंस और टेस्ट जो आपको मिलते हैं उनको ठीक से देखो, क्योंकि आप वेयर यू आर, यू कैन ओनली जज दिस प्रॉपरली, नोबडी एल्स कैन जज दिस फॉर यू। वी कैन गिव यू द साइंस एंड द टेस्ट कि ये टेस्ट हैं और ये साइंस हैं, ये देखो। तो बहुत ऑनेस्टली आपको वो चीज देखनी होगी, ना कि ऑलरेडी एक अपना माइंड बना ही लिया है कि ऐसा ही है एंड देन ट्राइंग टू फिट एवरीथिंग इन इट। Just getting, I mean, is luck also associated with it? I mean, whenever, like for example, whenever we have hardly met, but whenever we have met, I am spiritually awakened. So उसके आसपास मेरा कोई ना कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ social work, yeah, in terms of my personal goals. And because he is spiritually unawakened, तो उसकी financial deals crack हुई हैं exactly the day that we have met. Like, and does lunar cycles also aligned with it? I mean, new moon के आसपास ही होती है क्या मीटिंग्स, या फुल मून के आसपास, ऐसा कुछ है क्या? सो कुछ लोग एक दूसरे के लक के लिए लकी हो सकते हैं, वो दैट इज लाइक आई सेड, दैट इज अनदर अनदर थिंग। इसीलिए मैं बार बार यही पॉइंट बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगेन आई विल रिपीट कि जस्ट बिकॉज 1 2 3 साइंस मैच हो रहे हैं उसका कुछ भी मतलब मत निकालो। 2 3 साइंस मैच होने का कुछ मतलब मत निकालो, यू विल ओनली जस्ट मेक लाइफ हार्ड फॉर योरसेल्फ। बहुत सारे लोग बहुत लोगों के लिए लकी होते हैं, तो it doesn't mean anything। लोगों के लिए तो उनके डॉग्स, कैट्स, ये सब भी लकी होते हैं। लोगों के लिए तो कोई, दे कैरी अ लकी चार्म विद देमसेल्व्स कि ये होगा तो ये ऐसे रहेगा, नहीं, तो लकी चार्म इज दे डिफरेंट, बट एक दूसरे के भी लकी होना मतलब दोनों साइड से सेम गिव एंड टेक सेम। होना। हाँ 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 हाँ। तो ठीक है, इट्स अगेन आई एम सेइंग कि और भी साइंस देखो, और भी साइंस देखो कि और भी साइंस मैच कर रहे हैं क्या। अगर और भी But साइंस मैच कर रहे हैं is then there no single litmus test kind of thing, litmus paper kind of test जिससे पता ही चल जाए, other than your तो own वही तो intuition? मैं, तो इतनी देर से मैं यही तो बोल रहा हूँ, लिटमस टेस्ट आप बोल रहे हो, इतनी देर से ही तो बोल रहा हूँ कि वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, उसमें वी गिवन 10 साइंस। आपने वो कॉन्वर्सेशन सुनी है क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो आई हैव गिवन 10 साइंस इन देयर, तो वो देखो ना, उसमें से 8 से 9 साइंस, 10 साइंस मैच कर रहे हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से कि मैच, मैक्सिमम मैच होने चाहिए, 1 2 पे मत रुको। 10 साइंस हमने दिए हैं तो चेक करो कि 8 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, 10 मैच हो रहे हैं, दैट्स द लिटमस टेस्ट। ठीक है।
One more test that you can do for yourself, Deepika. I mean, this is something which Akarma does all the time. So not with a twin flame thing, but I guess this is going to work for to find out, it as a litmus test as well. So every time he is like in this state where he has to make a decision, and he wants some sign from the universe whether he should do it or not do it, right? So he would ask for something like really hard, I mean, which is not the usual thing that would happen with him. And he would give a specific time frame to the universe that by tomorrow morning, 12 a.m., if I get, let's suppose, this kind of a money, or I get, like, let's suppose, I get a call from, somebody, or maybe I see 3 times I see this kind of a thing. So it can be, anything that comes from inside you, and that has to be like something really tough, right? So that sign doesn't have to be like anything that you usually do. It has to be very unusual, and you can say that, let's suppose, in 48 hours and 78 hours, I want to see this particular sign. So you can try that for yourself. But that doesn't mean that you keep thinking about it all the time, or you start searching for it, or you keep looking for it. No, no, you have to be like really honest and trust this process. So this is not something that is in your control, right? So you just have to speak it out loud. Don't mix your intention with it. Just have an intention to know the answer, and let the universe guide you and give you that answer. So it's not like that you want a certain result. Free yourself from what outcome or result is about to come. If you're still attached to the outcome or result based on what you want it to be, it will most probably be, you know, what should I say, confusing. So keep yourself out of it. The intention is just to get clarity and answer. And you can Any try it. question that I want to ask the universe, Mm-hmm. get the answer, right? Pardon, can you We please we repeat? didn't hear you properly. Any question that I want the answer from the universe, I can try this. That's what you're saying, right? Uh, For the mm, twin flame thing, I was saying that you. So नहीं what is उससे the पहले ये एक मिनट I want to clarify this what she is talking about. It can be as simple as how she explained it, and it can be very complicated as well. So it depends on how you are hearing it. पहली बात तो ये है कि आपके कोई गुरु हैं? hello? हेलो, हाँ, Yeah, go ahead. आपके कोई गुरु हैं? मैं शिव शिव को ही अपना सब कुछ मानती हूँ. ओके. As in I राइट. followed a lot of things. मेरे in-laws के साइड से एक जोधपुर बेस्ड गुरु फैमिली है, बट शुरू में उनको फॉलो करती थी, अब नहीं करती हूँ. बट आपको आ, आपका आपको फील होता है शिव के साथ कनेक्शन? हाँ, वो तो बाई बर्थ है हाउ? मेरा. ठीक है. हाउ डू यू नो शिव इज ऑल्सो कनेक्टेड टू यू? मुझे पता ही नहीं करना, वो क्या? मेरे अंदर है. मतलब ही इज इन ईच एंड एवरी, नहीं ही इज विद नहीं. मी एट सेलुलर लेवल विद मी. अच्छा, ठीक ठीक है. तो फिर ये जो क्वेश्चन वो जो मेथड अनामिका बता रही है वो शायद आपके लिए वर्क नहीं हो पाएगा. समझी नहीं, क्यों नहीं दैट होगा? इज क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने रिवर्स कभी टेस्ट ही नहीं किया. यही से मैं आपसे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ. आई डोंट नो हाउ यू हर्ड माय क्वेश्चन. आई डोंट नो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको आपके ऊपर कुछ आपकी फेथ के ऊपर कुछ उंगली उठा रहा हूँ, या कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है ना नहीं आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है. बट किसी पे अगर मतलब पता ही है कि वो मेरा पार्ट है, तो मैं
मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकती हूँ कि मेरा हाथ मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है? उसका रिवर्स नहीं कैसे नहीं, वो ट्राई कर ठीक है, सकती हूँ? ठीक है। इसका रिवर्स ऐसा है कि जब आपने तो ये मान लिया कि आपका हाथ आपकी बॉडी का पार्ट है, लेकिन कभी कभी आपका हाथ भी अपनी प्रेजेंस को आपको फील कराता है ना। कभी आपको हाथ दर्द होता है तो आपको उसकी प्रेजेंस भी फील होती है ना। नहीं राइट। तो हाथ में कुछ होगा नहीं तो आपको कभी, ये तो आपका मानना हो गया कि मेरा हाथ मेरी मेरी बॉडी का पार्ट है, राइट। हम्म। तो आई एम हम्म। सेइंग कि जो मेथड अनामिका आपको बता रही है उसको वर्क करने के लिए देयर हैज टू बी अ टू वे स्ट्रीट। सो अच्छा। सो जिसको जिसको भी हम अपना गुरु या जिसको भी हम अपना मास्टर मान के चलते हैं, समवन यू आर कन्वर्सिंग, हम्म। has that entity conversed back with you? That's what I'm asking. Have you felt it? Have you ever felt that that entity has conversed back with you? क्योंकि अगर वो नहीं हुआ है तो ये जो वो हम्म। मेथड आपको बता रही है वो आप वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि उसको सुनना कैसे है। अगर इवन इफ दैट एंटिटी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट बैक विद यू, तो हम्म। आपने अगर वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ये मेथड नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा See, हूँ कि वो नहीं हो पाएगा। for me, I do feel there are guiding angels around me because whenever I see angel numbers, I thank all of them. And many a times, जो मेरा इंट्यूशन मुझे बोलता है वो मुझे फील होता है कि यूनिवर्स मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। एंड काफ़ी चीज़ों से मैं बची भी हूँ। एंड काफ़ी चीज़ें मेरे प्रेमोनिशन ड्रीम्स में आती भी है थ्रू द यूनिवर्स। तो वो सब तो मैं सुनती हूँ एंड आई एक्ट अपॉन देम एज वेल। लाइक फॉर एग्जांपल जो रिसेंट मेरा जॉब चेंज हुआ है। एक मिनट दीपिका, एक मिनट, एक हम्म। मिनट। आई थिंक वी आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। अम, देखो, वो तो आपको वो दिख रहे हैं और वैसा हो रहा है तो आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो कि इसका ये मतलब है, ये एक अलग बात है। मैं ये बोल रहा हूँ हम्म। कि क्या उस एंटिटी से आपने कम्युनिकेट किया है कभी? मतलब कॉन्शियसली आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट कि हो गया। इट्स लाइक कि वो इंट्यूटिवली तो वो थॉट आ गया, वो एक गाइडेंस चल रही है और आपने मान लिया कि ये उधर से ही आ रहा है, लेकिन आपने खुद कभी कम्युनिकेट करने की और उस कम्युनिकेशन को सुनने की ऐसा कभी हुआ है? ये मैं जानने की कोशिश कर, कॉन्शियसली हुआ है? जैसे दो लोग, दो जैसे आप और मैं अभी इस समय बात कर रहे हैं, ऐसे हुआ है हम्म। क्या कभी? अगर मैं स्पेसिफिकली शिव की बात करूं तो नहीं हुआ है, बट गणेश जी के साथ हुआ है मेरा। गणपति के साथ हुआ है, मतलब अच्छा। स्पेसिफिकली गणपति इन महाराष्ट्र। गणेश गणेश नहीं, गणपति बोलूंगी मैं। हम्म। शिव के साथ। अब अब बातें, मतलब मैंने शिवलिंग के आगे घंटों घंटों मेडिटेशन किया है ना टेम्पल। हाँ एंड उस हाँ, टाइम पे मतलब मैं सरेंडर करती हूँ, बट इट्स लाइक मैं बोलती हूँ, मैं करेक्ट सारा करेक्ट, वो कम्युनिकेट आप करती बोल हूँ। रहे हो। हाँ, हाँ। तो आपको ये नहीं सामने से मालूम जो है कि शिव कम्युनिकेशन आया है कैसे वो कम्यु गणपति से आया है। हाँ हाँ, तो मैं यही वही पूछना चाह रहा था, क्योंकि क्योंकि आपको हो सकता है शिव इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद यू, लेकिन आपको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आए, आपको नहीं मालूम है कि दिस इज हाउ ही इज। आपको गणपति की लैंग्वेज ज्यादा समझ में आ गई, हो सकता है। है ना। तो वही वो चीज के ऊपर बात कर रहे हैं हम कि वो वो टू वे कम्युनिकेशन अगर एक्सपीरियंस किया है तभी जो मेथड अनामिका बता रही थी वो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, आप शिव से कुछ पूछ रहे हो, साइन साइन का कुछ पूछ रहे हो, पर पर ऐसा है ना कि जैसे मतलब यू आर इंडियन और आप किसी जापानीज से बात कर रहे हो, वो आंसर दे रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या आंसर दे रहा है। तो तो वो हो नहीं पाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या हुआ। तो इट्स वेरी दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि वो नहीं वर्क कर पाएगा उस एंगल से। ऑल्टरनेट मेथड बस वही है, टू चेक आउट द नंबर ऑफ साइंस, राइट? यस यस, आई थिंक आपको अगर बिल्कुल एकदम लिटमस टेस्ट के जैसा चाहिए तो वही है। अगर आपको एनालिटिकल माइंड यूज करना है इसके लिए तो वही है, कि दैट इज हाउ इट इज। सो those signs are there. Uh,
and you make sure कि more कि like 7 8 7 प्लस तो होने चाहिए. 7 से कम है तो it's not something you should put your money on. You should not bet on it कि ऐसा ही है. क्योंकि जिन लोगों का होता है ना, आई एम नॉट सेइंग आपका है या नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता. लेकिन जिन लोगों का होता है, मैं उनकी बात, उनका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि जिन लोगों का होता है, उन लोगों के ऑलमोस्ट ऑल साइंस मैच. I have met many people who are on this journey and majority of them, मैं अभी भी मतलब मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 99% भी बोलूंगा तो सेम ही बात है, उनके सब साइंस मैच होते हैं. तो वही एक कंक्लूसिव टेस्ट है कि And ऐसा ये होता है. and suppose साइंस मैच कर रहे हैं 7+8+, मतलब it's on the other side, they are matching, and still I want to cut off the thought of that person from the back of my mind. और नहीं, अभी भी एक और भी है इसमें. अभी भी 7 और 8 साइंस मैच हुए भी तो भी फर्स्ट टेस्ट पास हो रहा है. सिर्फ फर्स्ट टेस्ट पास हो रहा है. इसका मतलब कि ये ट्विन फ्लेम हो सकता है. अभी भी कंफर्म नहीं है. कंफर्म कब होगा? कंफर्म तब होगा कि लाइक आई सेड कि इनिशियल डेज में twin flame and karmic relationships, equally toxic relationships, they're almost same. And these signs can match for karmics also. तो ये पहला टेस्ट है जिसमें हमें एक हद तक अभी लगा कि हाँ ये हो सकता है. अगर वो पहला टेस्ट भी पास नहीं हुआ तब तो आप इजीली कंक्लूड कर लो कि वो नहीं है. Right. अगर ये पहला टेस्ट पास हो गया तो भी देयर इज सेकंड टेस्ट विच इज कि सेपरेशन में both will be evolving. If both people are not evolving in separation, then it's not a good thing. So Even if the evolve. first test passes, evolve. If both of them are working on themselves, so usually that is the setup, that is the design. You separate from each other, ताकि you can come back and you can take this forward. But जिन ट्रिगर्स की वजह से आपका सेपरेशन हुआ था, अगर वो ट्रिगर्स अभी भी हैं, वापस आने के बाद वो ट्रिगर्स अभी भी बने हुए हैं, सेम ही बात है. बस आपको सो इट वाज नॉट सेपरेशन, इट वाज मोर लाइक अ ब्रेक कि हमने बस होल्ड पे कर दिया, पॉज, टाइम आउट कर दिया बस चीजों का. तो कुछ बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत झगड़े हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, तो वी जस्ट कॉल इट अ टाइम आउट, वी जस्ट पॉज्ड इट, वी जस्ट पुट अ होल्ड ऑन इट. हम थोड़ा दिन अलग हो गए और फिर वापस आए और जहां झगड़े छोड़े थे वहीं से पिक कर लिया और वापस से शुरू हो गए. दैट्स कार्मिक रिलेशनशिप, दैट्स नॉट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. सो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में वापस आओगे तो फिर से झगड़े होंगे, फिर से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन नए ट्रिगर्स पे होंगे. पुराने ट्रिगर्स पे अगर अभी भी हो रहे हैं तो देन यू कैन वेरी वेल कंक्लूड कि ये कार्मिक रिलेशनशिप ही है. So this evolution you're talking about during separation, this is only spiritual evolution we are referring to, or this can be any evolution related to this 3D as well? क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, मुझे समझ नहीं आया. I mean, you are saying that क्वेश्चन कुछ और तरीके से. during separation, both of them evolve, right? हाँ. So this evolution is only related to spiritual evolution during separation, or this can be any other kind of evolution as well, like What physical, does any other kind मतलब क्या होता है? मतलब related to finances or personal goals. नहीं. When we talk about evolution, we are talking about evolution in your level of consciousness, level of awareness. We're not talking about materialistic evolution. Okay, level of awareness. Then again, it means Evolution, level of consciousness, level of awareness. उसको आप जो भी नाम दो, as long as two people are evolving in their emotional intelligence, then that is what I will call it. अच्छा. किसी को स्पिरिचुअल वर्ड क्लिक होता है, किसी को नहीं होता.
नहीं होता है तो नहीं होता है, होता है तो होता है. इट डजंट हैव टू बी what that way, but as long as two people are emotional, becoming more emotionally intelligent, as long as they have resolved their uh, previous triggers, जो भी wounds जिनकी वजह से वो triggers हो रहे थे, उनको देखा, उनके ऊपर काम किया, उनको resolve किया, और फिर वापस आए. वापस आने के बाद हो सकता है यू नाउ ट्रिगर ईच अदर इन डिफरेंट वेज. अब कुछ नया आ गया, वो तो हो गया, अब कुछ नया आ गया. तो ये यूनियन सेपरेशन का तो सिलसिला चला ही रहता है उसमें. यही तो पॉइंट है, ताकि हर बार यूनियन में आने का ही पर्पस ये है कि आपको और ज्यादा दिखे कि आप अपने ऊपर और अभी कितना काम करना है, ताकि वापस जाके वो काम कर सको, फिर वापस आओ, फिर एक दूसरे को ट्रिगर करो, फिर से दिखेगा कि अभी क्या काम करना है, फिर से जाओगे. ये जर्नी जो है, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स. और एंड आई वुड से टू एनीबडी, आई डोंट लाइक, कई बार लोग ऐसा नाम के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट इफ यू आस्क मी, आई विल से you are very very lucky person if you are not in this journey. Hmm. You are a lucky person if you are also, but वो luck एक अलग ही टाइप का luck है, उसमें बहुत लगने वाली है. So if you are ready for that kind of heat and intensity, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत देखी हैं लाइफ में और ऐसा है, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 100. Any toxic relationship you have ever been in, multiplied by 100, that is what a twin flame relationship is. It just tears you apart from inside. It is that kind of relationship that tears you apart from inside, क्योंकि वो उसका डिजाइन ही वैसा है. If you are ready to do that, if you are ready to disappear, if you are ready to let to basically just dissolve your identity, let your go, if you are ready to disappear, then this journey is for you. Many people who are on this journey also unsubscribe from this journey. मुझे तो नहीं करना है काम. ये बहुत एक्सट्रीमली टॉक्सिक वर्जन है किसी भी रिलेशनशिप का. एक्सट्रीम टॉक्सिक वर्जन है इनिशियल डेज में. वो एक्चुअल जो इसकी ब्यूटी है, वो तब बाहर आने लगती है जब दोनों पार्टनर्स ने कुछ इटरेशंस में अपने ऊपर काम कर लिया है. दे हैव बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट, दे हैव एम्ब्रेस्ड द ब्यूटी ऑफ सेल्फ वर्क. वो होने में ऑन एन एवरेज लोगों को 15 से 20 साल लग जाते हैं. ये जनरली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ. जनरली 15 से स्पीकिंग 20 साल आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दैट दे आर ऑन दिस जर्नी. हाँ हाँ हाँ, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि यूनियन और सेपरेशन का जो सिलसिला है, ऑन एन एवरेज 15 से 20 साल चलता है. 15 से 20 साल लाइफ की जो लगती है ना, यू कैन नॉट इमेजिन इट. यू कैन नेवर इमेजिन इट कि वो कितनी हार्ड जर्नी है दोनों दोनों लोगों के लिए. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, अगर आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप झेली है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 100. क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना कहीं इंसान ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे वो उसको ये लगता है कि आई लीव, आई टेक डिवोर्स और आई सेपरेट, और हो भी जाते हैं. ट्विन फ्लेम जर्नी में ना वो चाह के भी अलग नहीं हो पाते. देयर इज नो गोइंग अवे फ्रॉम इट, देयर इज नो अनसब्सक्राइबिंग फ्रॉम दिस जर्नी. So और इसकी वजह से लोगों की सफरिंग ज्यादा बढ़ती है. क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट पे ऐसे आता है कि इंसान वो काम कर करके अपने ऊपर ना इतना थक जाता है ना, इतना थक जाता है कि उसको ऐसा लगने लगता है ना कि दे कैन नेवर बी विद अनदर पर्सन. इसके अलावा और किसी के साथ होगा नहीं, और इसके साथ हो नहीं रहा. तो ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ना लोग, ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं.
और ये जब 15-20 साल तक ये चीज चलती है ना, तो you just have to meet enough twin flame couples to understand कि what this journey is. ये मिलो, किसी से बात करो, तब समझ में आएगा. सिर्फ सिर्फ नेट पे रीडिंग मत करो, कभी मिल के देखना. कभी कोई मिलोगे ना जो जो इस जर्नी पे होंगे ना, एक बार मिल के उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करना, तब आपको पता चलेगा कि what this is. But how to find out such people? I mean, many people will not disclose it if they are You already just in have a. to meet you just have to meet enough people to, of course, no, people will not disclose it, so you just have to meet enough people in life to get in touch with them. और यू कैन सी, अगर ढूंढने से तो लोगों को भगवान भी मिल जाता है, तो अगर ढूंढना हो तो ढूंढ ढूंढ भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है. हाँ, घर आके तो कोई बताएगा नहीं कि आई एम ऑन दिस जर्नी, और कोई इतना इजीली भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, पर ढूंढने निकलोगे तो मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है. There are a lot of communities. There are a lot of communities dedicated for this and all that. ढूंढने निकलोगे तो भगवान भी मिल जाता है, वो बात नहीं है. Because ये इधर के रहे ना उधर के रहे वाली feeling तो I am getting from now itself, when I have not even embarked on the journey and when I am not into a जो कहते हैं relationship with that person. हाँ, वो तो 15 से 20 साल लोगों को इसीलिए लगते हैं क्योंकि पहला, मान लो 5 से 10 साल तो लोगों को ये फिगर आउट ही करने में लग जाते हैं कि चल क्या रहा है. 5 से 10 साल तो उसी में चले जाते हैं, इतनी टॉक्सिसिटी में कि ना तो रहा जा रहा है ना छोड़ा जा रहा है, ना तो यहाँ के रहे ना वहां के रहे. 10 साल तक तो ऐसे ही चलता है, 5-10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं. उसके बाद जब इतनी लाइफ की लग जाती है, तब उनको कोई तो गाइड मिलता है. ये जर्नी बिना गाइड के कंप्लीट होने वाली है ही नहीं. आई टेल यू दैट. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू कंप्लीट दिस जर्नी विदाउट अ गाइड. गाइड इन द सेंस, मतलब अब गाइड कहाँ से मिलेगा? वही मिलेगा जब आपका टाइम आएगा, तो मिलेगा. मिलेगा क्यों नहीं. मतलब a third person. यू नीड अ पर्सन हु कैन गाइड यू कि इस जर्नी को कंप्लीट कैसे करना है, इसमें से बाहर कैसे, इसको कंप्लीट कैसे करना है. So that guide can be someone from not from 3D as well, ना? मतलब that can be some entity also. नहीं, वो तो DIY हो जाता है. एंटिटी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट Angels. गाइड. आई एम टॉकिंग अच्छा. अबाउट एंजल्स के भरोसे आपका काम नहीं हो पाएगा. एंजल्स के भरोसे, एंजल्स के भरोसे आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या, आपको कैसे, क्योंकि वो आपकी खुद की ही इंटरप्रिटेशन रहेगी. वो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक सर्टेन वे में इंटरप्रेट करना है, तो आपने उसको वैसा कर लिया है. तो इट इज नॉट a guide, is someone. So ultimately the whole journey of twin flame is to come into your divine feminine and divine masculine energy, to combine these two energies, to merge these two energies. तो So पहले 5-10 साल तो लोगों के ऐसे ही थप्पड़ खाने में ही जाते, कुछ पता ही नहीं है चल क्या रहा है. इधर उधर इधर उधर टॉक्सिसिटी, कभी इधर. लॉट ऑफ स्पिरिचुअल शॉपिंग हैपनिंग, बेसिकली लॉट ऑफ स्पिरिचुअल शॉपिंग विल हैपन. इधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया, ये भी रीडिंग, वो भी रीडिंग, ये भी बुक पढ़ ली, वो भी एक्सपर्ट का ब्लॉग पढ़ लिया, ये भी वीडियो देख लिया. बात किसी से नहीं की अभी तक, बट पढ़ बहुत कुछ लिया, इंफॉर्मेशन बहुत ले लिया. तो लॉट ऑफ स्पिरिचुअल शॉपिंग विल हैपन. दिस इज usually what happens. So I'm just talking, but I'm just giving you like an overview of how people go through this journey. तो शुरू शुरू में ये स्पिरिचुअल शॉपिंग बहुत चलती है. बहुत बहुत कुछ DIY चलता है. ये भी देख लिया, वो भी पढ़ लिया, किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, ये हो गया, सब हो गया. 10 साल ये सब करने के बाद जब अल्टीमेटली यू कम टू दैट पॉइंट कि अभी भी कुछ नहीं हो रहा, इतना कुछ पता चल गया तो अभी भी वहीं का वहीं है, अभी भी कुछ हो नहीं रहा, then the master appears in your life. When the student is ready, the master appears. Until the student is not ready, no master appears. So the master. Then the guide will appear in your life who will guide you कि अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज पे काम कैसे करना है.
फिर वो काम करने में आपको और आगे 5-10 साल लगेंगे, मिनिमम 5 तो पकड़ के चलो। वो काम करने के बाद यू रीच अ पॉइंट जहां पे यू फुल्ली अंडरस्टैंड कि ये जर्नी आपको क्या सिखाने की आई थी। वो बिना गाइडेंस के नहीं हो पाएगा। So that guidance can be someone from on twin flame journey as well, right? Or will be Well, someone who has already experienced that. someone who knows this, हाँ, I mean, गाइड आप अब आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का टीचर ही पढ़ाएगा ना, फिजिक्स का टीचर तो मैथ्स नहीं पढ़ाएगा ना। Right. तो ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आया कि इट कैन बी फ्रॉम ऑन ट्विन फ्लेम। सो जो सब्जेक्ट का प्रोफेसर है वही तो पढ़ाएगा ना, वही तो गाइड कर पाएगा ना आपको, जिसको समझ में आएगा कि व्हाट जर्नी यू आर ऑन। तो बिना उसके कैसे आप इंग्लिश टीचर से जाके तो मैथ्स नहीं पढ़ लोगे ना, क्योंकि वो टीचर है। तो सब्जेक्ट मैटर भी तो होना चाहिए ना। So these two tests is what you are suggesting, right? Science, number of science, and then the separation, during separation, the kind of evolution the person goes through. Correct. Correct. Okay. So if you are observing कि that is happening, then you can conclude कि ये twin flame journey है. Okay. So my next question is, can I ask the next question? Just wait. There are more people who got their hand up, so let me visit those people. उनके काफी देर से हाथ हैं. Yeah, I understand. Yeah, sure. Ishwar, you have a question? You have to unmute yourself. Hey, hi, I'm sorry. So, Akram, there's no question as a question, but I thought I can add something which will help. I think there was some previous person called, I think, Deepika, which will help her to get the answer. But I don't know if I'm the right person to give some points over here, because you being the expert who is giving all this information. If in case I can have a minute, I can probably say something over here. You can say something over here. I don't mind, but you understand what we are talking about? Yeah, You have I any do background in this topic? I understand that at least. And you can stop Okay, me what anytime is your over the time. background? Can you? No, No. if you can stop me, if in case if I'm going wrong, you can always stop me. I am open for that as well. Or if you think I'm not qualified or I don't have to talk, maybe I can stop that. No problem. You can skip to the next person. That's absolutely all right. No, Akarma, you're not audible. It's okay. So if you're not No, allowing it, you then I can probably stop. can No talk. problem. You can talk, Ishwar. Akarma was Okay. just asking you that do you have a background or any kind of experience in this? I mean, have you gone through something like this? Okay, let me share a few words, and then we can probably see if it's going in a meaningful discussion. So, Deepika, what happens is something which I would say, looking into your conversation, there are times when we have a one perception which we build from our side, and there's the other perception which can be from anybody on this earth. Now, one way you are saying, you were talking about the Shiva, your connection. You said you never heard about it. Ishwar, Yeah. 1 minute. I was saying something. I think you've joined recently in this community, so I wanted to make sure that you fully understand how we discuss things in here. So this community, this is a support group, Okay. right? This is not a discussion forum. So हम यहाँ पे टॉपिक्स पे ऐसे ही डिस्कशन नहीं करते कि एक सर्टन ओपिनियन या मेरे पास भी कुछ बताने के लिए है तो मैं बता रहा हूँ. No, I will not. तो I'm it not is saying that this just an is opinion. Okay, हाँ, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँ. Yeah. हाँ. सो आई एम सेइंग कि आप बता सकते हो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ आपकी बात बताने के लिए, बट क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है
So before you say something, I want to know, how do you know about this topic? Well, Do you personally identify yourself on this journey? to an extent. ठीक है. Okay, To an extent का Akama, मतलब? I think if you're having a question mark that what I'm gonna say will impact other audience, let me not say anything because I don't want to put a lot of question marks over here where you are doubtful. I don't want to put those many questions to at least about 20 plus audience over here. So I will not like to say anything further. I would pass on this and let's move to the next person who has a question. So this is for everybody else also on the call. Many people have joined new. So I just wanted to make sure कि हमें डिस्कशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आई अवॉइड डिस्कशंस which are just hypothetical in nature, क्योंकि many a times people have read many things and they know many things. तो वो क्या होता है, वो कॉन्वर्सेशन बहुत थ्योरेटिकल हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है, तो हमें बहुत मॉडरेशन करनी पड़ती है. तो ये एक सपोर्ट ग्रुप है जहाँ पे लोग जो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू सर्टन चैलेंज एंड दे नीड टू हैव स्पेसिफिक आंसर. तो इसीलिए आई इनवाइट एनीवन हु वांट्स टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव ऑन इट, प्रोवाइडेड कि उनको उस टॉपिक के बारे में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है. सिर्फ नॉलेज होना एनफ नहीं है उस टॉपिक में, पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. पर्सनल एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज आई डेंट नो यू, यू आर द फर्स्ट पर्सन, इसलिए आई एम क्लैरिफाइंग दिस विद यू. देर आर अदर पीपल विच हु आई हैव नोन, सो you came on the call first time, so I needed to clarify this and I needed to make sure that you also understand कि ये setup कैसे work करता है. तो अगर आपको है पर्सनल एक्सपीरियंस इस एरिया में, तो गो हेड एंड शेयर, आई हैव नो प्रॉब्लम. And that's all right. Akama, I'll pass on because as you're unaware, so maybe my way of saying something may I don't want to put any lot of questions in others' mind. That's okay. Thank you very much. ठीक है. Rupali, your hand is up. You want to say something? Yeah, so I have a question to ask. I wanted to check, is like out of body experience somehow related to this, the twin flame thing? Does it happen? And another question I had was, whenever there is a separation, uh, personally I feel very liberated, I feel very happy, and I, although somewhere back of the mind I keep on missing that person and everything, but I feel so happy. I am working on myself and everything. I don't feel like getting back into it, but I have seen like this would be like my second time where I have been separated and we will be like working on and everything. So like I just feel happy even without that person, just that I miss some good moments and all those things. uh so I just wanted to know, like, how exactly I can conclude this journey. Is it possible to do that, or how can I end this? Because if I'll spend like 10-15 years into all this, already I have spent 6 years. So I feel like my biological clock is ticking and everything, all those things. So I don't know, how do I move on out of this? So two questions. Right. Um, mm, to answer that question, you first have to understand कि इस जर्नी का ऑब्जेक्टिव है क्या. क्योंकि many times people who get stuck in this journey, they feel कि ultimately they want to get married to that person, to their twin flame. तो वो मैरिज को गोल बना लेते हैं. तो वो ठीक है, मतलब मैरिज कुड बी वन ऑफ द गोल्स, बट वो गोल है नहीं इस जर्नी का. That is the crux of it. And I'm sure that you would have heard this from other sources also, लेकिन वो हम accept नहीं करना चाहते. तो the journey is about your own personal growth.
this person is coming in your life to show you the mirror, so you can see your own triggers and you can work and you can evolve. Often, people who are on a twin flame journey, one of the signs in that one, जो 10 साइंस की मैंने बात की है, उनमें एक साइन ये भी होता है कि people who are on a twin flame journey, innately, this is nothing to do with the other person, बचपन से ही उनका ध्यान हमेशा किसी ऐसे चीज पे होता है कि दे वांट टू डू समथिंग फॉर द अदर्स. तो शुरू से ही वो लोग इनेटली इस कैटेगरी में होते हैं. तो दे आर ऑलवेज दे हैव दिस नीड, जो इनेट नीड बोल सकते हैं, दे हैव दिस इनेट नीड टू डू समथिंग फॉर अदर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, फॉर द ग्रोथ True. ऑफ अदर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो अब बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो आप इसको अब इस एंगल से देखो कि दीपिका ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इसका पर्पस क्या होता है. तो ऑल्दो वी हैव डिस्कस दिस 2-3 आवर्स लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, तो इसलिए मैं पूरा उसमें नहीं जाऊंगा, आप लोग सुन लेना वो वाली कॉन्वर्सेशंस. बट उसका क्रक्स एक ऐसा है कि अगर यू आर सपोज टू हेल्प अदर्स इवॉल्व, तो उनकी एवोल्यूशन के लिए आपको एटलीस्ट 4 स्टेप्स आगे तो रहना पड़ेगा ना उनसे. True. तो आपको 4 स्टेप आगे रहने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी. तो ये एक ऐसा है ना कि जैसे द यूनिवर्स इज बेसिकली टेस्टिंग यू टू सी, आपको ये मन तो है ये सब करने का, लेकिन हाउ मच यू आर रेडी, तो हाउ मच हीट यू कैन गो थ्रू. दूसरों को गाइड करने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं लगता है, दूसरों को गाइड करने के लिए उसमें से गुजरना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज कैन नॉट हेल्प द अदर पर्सन. नॉलेज तो बुक्स में भी बहुत है. तो नॉलेज की जो एप्लीकेशन होती है वो किसी की आप हेल्प कर सकते हो. अगर आपने कभी वो ब्रिज क्रॉस ही नहीं किया है तो आप दूसरे को क्रॉस नहीं करा पाओगे, और क्रॉस करके आपको और 10 कदम आगे रहना है ताकि वो आप उनको क्रॉस करके पीछे ले आओ. बाकी आप अगर उनको सिर्फ बुकिश गाइडेंस देना चाहते हो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो नहीं होती है. दैट इज नॉट देयर. सो द रियल गाइड्स, if universe has chosen you to be that real guide for people, that you will be leading the masses through a certain level of evolution, so then the universe wants you to go through it first. That is what the twin flame journey is all about. और वो करने के लिए अपने अंदर झांकने के लिए आपको एक मिरर की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को देखने के लिए, अपने ट्रिगर्स देखने के लिए, और वो मिरर है आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर. क्योंकि जब आप उस इंसान, ये सेटअप ऐसा है ना, लाइक आई वाज सेइंग टू दीपिका आल्सो, कि जब आप उस ट्विन फ्लेम से मिल लेते हो ना, व्हेन यू कनेक्टेड विद दैट पर्सन, जब तक आप मिले नहीं थे तब तक मिले नहीं थे, लेकिन जब जिस दिन मिल लिए उस दिन आपको ये समझ में आ जाता है कि अब इसके अलावा कोई और चलेगा ही नहीं, अब दिस इज इट. सो अब ना तो उसके साथ आपकी बन रही है, ना उसके साथ छूट रही है, ना आपकी किसी और के साथ बन पाएगी. तो यू कम इन लाइफ टू अ सिचुएशन जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी पर्सन आई हैव स्पोकन टू, दे हैव बिकम सुसाइडल. उनको दिखती ही नहीं है रोड आगे की, उनको समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है, क्योंकि ना तो वो छोड़ सकते हैं ना वो रह सकते हैं. ये इतनी इतनी अजीब टाइप की सिचुएशन में वो आ जाते हैं कि they don't feel connection with anybody else in the world, and they cannot be with this person also, क्योंकि that person is. So उसमें जो उनको अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ता है ना, वो इनर वर्क जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है ना, वो एक अलग ही लेवल का इनर वर्क है, अलग ही लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन.
So ये समझ लो कि बस ये जॉब करने के लिए ये क्वालिफिकेशन है. You have to go through this heat to become that person if you feel like कि your purpose in life is to help others evolve in whatever way. I don't know what your way would be, but अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस धरती पे भेजा गया है ताकि आप आप और लोगों की हेल्प कर सको, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है. You go through this and you evolve. अब इसमें जितना भी टाइम लगे, वो यूनिवर्स के पास टाइम और स्पेस की कोई कमी नहीं है. इस लाइफ में नहीं हुआ तो अगली लाइफ में स्टार्ट करोगे. इस लाइफ में बहुत सारे लोगों को नहीं, लाइक आई सेड, मेनी पीपल, सो यू कैन नॉट अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस जर्नी, बट दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट. उनके लिए इतना हो जाता है कि दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, दे डोंट डू एनीथिंग. So you don't do anything, you live a toxic life, you live a substandard life, and that's it. ऐसे ही मर जाओगे, फिर दोबारा आओगे, फिर स्टार्ट करोगे. इससे इससे अनसब्सक्राइब नहीं हो सकता है. वहां आप खेलना छोड़ सकते हो. आप ये बोलो नहीं खेलना, मुझे नहीं करना, मेरे को अपनी पक्का है. नहीं क्यों करूं? बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है, नहीं क्यों करूं, मेरा पार्टनर तो कोई काम नहीं कर रहा, मैं ही क्यों अपने ऊपर इनर वर्क करता है. वो क्यों नहीं कर, अगर वो भी है तो वो क्यों नहीं कर रहा, मेरे ऊपर ही क्यों सारा बर्डन है. हाँ, ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो आप, और ये सब क्वेश्चंस की वजह से आप रुक सकते हो, बट इट विल ओनली डिलेड. इसीलिए तो 15-20 साल लगते हैं लोगों को, क्योंकि वो Okay. एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो इस जर्नी पे हैं, और उनको यही लगता है कि मैं ही क्यों करती रहूं, मैं ही क्यों करता रहूं. वो तो आराम से जी रहे हैं, वो तो आराम से, उनका तो सब बढ़िया चल रहा है, मेरे ऊपर ही क्यों सारा बर्डन आ रहा है. आई एम श्योर यू वुड हैव फेल्ट दैट एज वेल. At one point, yeah. And I can see that in my case, I am very spiritual. I mean, it happened only after all these things that I got into spirituality, and I have been evolving. But I see that the other person, he is not spiritual, और उसको तो उस नाम से भी चिढ़े, वो कभी कुछ कर भी नहीं रहा, but he is doing it in other way. वो लॉजिकल अप्रोच लेके कर रहा है. लाइक he reads about psychology, he reads about a lot many things, he goes to a इसीलिए therapist and all that. So he is हाँ working on himself, but in another way. He doesn't believe हाँ in the इसीलिए मैं वही spiritual thing that I do. हाँ इसीलिए मैं वही वर्ड यूज करा था व्हेन आई वाज टेलिंग दीपिका कि you can, instead of saying spiritual, you can just say becoming more emotionally intelligent. That's more neutral word, neutral phrase to use. क्योंकि कहीं ना स्पिरिचुअलिटी वर्ड भी बहुत कंटेमिनेट हो चुका है. हम बोलते कुछ हैं, हम समझते कुछ और ही हैं. Many people relate spirituality with religion. Many people don't. So अब हमें नहीं समझ में आता कि कौन कैसे सुन रहा है. तो जब हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं तो हम तो नॉन रिलीजियस सेंस में उसको बोल रहे हैं. हम तो एवोल्यूशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं. हम तो अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, हम तो उस एंगल से बात कर रहे हैं. लेकिन कई लोग उसको रिलीजन के एंगल से भी सुनते हैं. सो फॉर मेनी पीपल स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन आर सेम थिंग. तो अभी ग्रुप में नहीं पता होता ना कि कौन कैसे सुन रहा है, किसको क्या समझ में आ रहा है. तो इसीलिए आई प्रिफर टू से कि इट्स मोर अबाउट becoming more emotionally intelligent person. Because इमोशनल इंटेलिजेंट बनने के लिए भी वही सब कुछ ही लगता है. एट द एंड ऑफ द डे you cannot become emotionally intelligent person without self awareness, without self regulation, without mindfulness. It's all part. So I prefer to call it emotional. Right. And I had the first question, Akarma, about the out of body experience. So does that happen during this journey? Once again, that can happen without this journey also. Out of body experience, people can experience. So it's nothing exclusively available for people on this journey only. Okay, Anybody when can we were experience out together, of. basically, it was related to that. So otherwise, also I have felt it apart from that, but during this case, I felt it. So Hmm. Hmm.
So There is are it a more prominent signs than this. There are more okay? prominent signs than this. That's what I can say. हाँ, आप वो एक बार साइंस वाला जो हमने कॉन्वर्सेशन किया था वो वाला वीडियो चेक करना. There are more prominent signs than I just these saw the things. playlist. There are like 4 videos. So उसमें से कौन से वाले में साइंस है exactly? अब ये नहीं पता मुझको क्योंकि हम जब कॉन्वर्सेशन करनी शुरू करते हैं तो इधर से उधर जाती है. आई प्रीफर कि आप चारों ही सुने ना. Okay, okay. I'll do that. Thank you. हाँ. We Yeah. talked about science, we talked about stages also. There are 6 or 7 stages how this whole journey unfolds. तो उसमें stages भी mentioned है. So this you are talking about ये कितना time लगेगा, कैसे लगेगा. Time कितना लगेगा वो आपके ऊपर है. वो टाइम कोई नहीं बता सकता कितना लगेगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव है. हाँ, हम स्टेजेस बता सकते हैं कि जैसे ग्रीफ, समवन गोइंग थ्रू ग्रीफ. सो वी नो कि ग्रीफ की 5 स्टेजेस होती हैं. एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दोस 5 स्टेजेस. अब आप कितने टाइम में कंप्लीट करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन पांचों की पांचों स्टेजेस तो आएंगी. जब अवेयरनेस में करते हो हम ये चीजें तो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं. जब अवेयरनेस में नहीं करते हैं, जब अवेयरनेस ही नहीं होती कैसे वो, फिर जब हो रहा है तब हो रहा है, जैसे हो रहा है फिर हो रहा है. तो वही जैसे पहले दीपिका के साथ जब बात कर रहे थे तो जैसे कि अवेयरनेस ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो वो तो होगा ही. वो तो जब हमारा ध्यान नहीं है, हम कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो तो फिर अपने आप अपने हिसाब से होगा जैसे भी होगा. उसमें तो हमारा कुछ रोल ही नहीं है. वो तो हम बस बह रहे हैं पानी में. वो पानी हमें ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, कैसे भी ले जा रहा है, वो तो हो रहा है. हम वही अगर उसमें अपनी नाव चलाने लगे और प्रॉपरली हम उसको नेविगेट करें तो हम उस चीज को ठीक से मैनेज कर सकते हैं ना. अब वो तो फिर फ्लो तो जैसे लेके जा रहा है वो तो लेके जाता जाएगा, फिर वो तो होता ही जाएगा. तो स्टेजेस तो सेट है, बट स्टेजेस खत्म कितने टाइम में होंगी दैट विल डिपेंड ऑन हाउ अवेयर यू आर एंड हाउ वेल यू आर बीइंग गाइडेड. सिर्फ अवेयरनेस से भी काम नहीं बनेगा, गाइडेंस भी चाहिए रहेगी. सो with proper guidance and with proper awareness you can reduce the time. You can get out of this thing much quicker as compared to अपने आप ही बह रहे हैं. Okay. So whatever I'm working right now, it's a guidance only, right? हाँ Or do हाँ करेक्ट. सो ये जो काम आप अभी अपने ऊपर कर रहे हो ये प्रिलिमिनरी काम है फॉर एनीवन. सो वी मेंशन दिस many times before also that this work, these set of workshops you are going through, ये तो प्रिलिमिनरी काम है ही फॉर ट्विन फ्लेम. एनीवन हु आइडेंटिफाइज देमसेल्व्स ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी ये तो करना ही है. ये तो फर्स्ट 3 वर्कशॉप जो आप कर रहे हो ये तो प्रिलिमिनरी, ये तो बेसिक है. ये तो करना ही है, ये तो पहले करना ही है. लेकिन for especially for people who identify themselves on a twin flame journey, there is more energy work that needs to be done. बट वो एनर्जी वर्क तभी आ पाएगा, पहले ये बेसिक पहले यहाँ सेटल होना पड़ेगा, तभी आगे का काम हो सकता है. okay. The तो energy work वो means the energy work सो means about एनर्जी. the masculine feminine thing that you have. करेक्ट करेक्ट Okay, करेक्ट okay. करेक्ट. सो स्टेजेस कैसे हैं कि अभी हमें हमें जाना है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के मर्ज की तरफ. हम्म? ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन तो सिर्फ बोलने की बात है. ये टर्मिनोलॉजी है. ये एक्चुअली में ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम है. क्योंकि when you go towards the divine form of these energies, तो ये एनर्जी है मैस्कुलिन और फेमिनिन. ये हो गई, ठीक है. अब ये टॉक्सिक फॉर्म में रहती है. इनिशियली ये टॉक्सिक फॉर्म में है, तो पहले तो उस टॉक्सिसिटी को खत्म करना है, ठीक है. तो जो भी वट एवर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वुंड्स यू कम थ्रू, पहले तो वो नेगेटिव को जीरो पे ला. नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव पे, सीधा डिवाइन पे नहीं जाते. तो टॉक्सिसिटी से पहले न्यूट्रल स्टेट में. तो न्यूट्रल स्टेट में आने के लिए जो वर्कशॉप्स अभी हैं वो वहाँ पहले उसको क्या है डिटॉक्स करने के लिए वो पहले वो निकालना है सब कुछ. तो पहले यहाँ आना. तो यहाँ आने के बाद हम जो हेल्दी मैस्कुलिन और हेल्दी फेमिनिन स्टेट है, अभी तो हम अनहेल्दी में, जो टॉक्सिक या अनहेल्दी स्टेट में है.
अभी तो हमने हेल्दी स्टेट भी एक्सपीरियंस नहीं की, डिवाइन तो बहुत दूर की बात, ठीक है। तो पहले टॉक्सिस अनहेल्दी स्टेट से निकल के हेल्दी स्टेट में तो आ जाओ। तो पहला स्टेप है टॉक्सिक से निकल के जीरो पे आना। पहले टॉक्सिसिटी खत्म करो, पहले अपना बर्तन क्लियर करो, उसमें जो कचरा भरा हुआ है पहले वो निकालो, फिर experience the healthy form of it, experience the healthy form of divine masculine, yeah, sorry, the masculine and feminine energy. तो तो इसको ऐसे another way of looking at it is like कि you want to become king or queen, लेकिन अभी you are just boy and girl। तो पहले बॉय और गर्ल से उठ के मैन और वुमेन तो बन जाओ। मैन और वुमेन बनने के बाद यू कैन बिकम किंग एंड क्वीन, अचीव दैट। सो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो you then come in the healthy state, experience the healthy form of masculine and feminine energy, where you balance, where you understand कि लाइफ में दोनों को दोनों को यूज करने की जरूरत है, दोनों को साथ में लेके चलने की जरूरत है। एंड हाउ यू express, how you become a secure attachment style person. A secure attachment style person is someone who has balanced these two energies. Once again, balance doesn't mean 50-50. You already know this. Balance means दोनों को यूज करना, ना कि सारा सारा टाइम या तो मैस्कुलिन से ऑपरेट करें या सारा टाइम फेमिनिन से ऑपरेट करें। नहीं, जहां जिसकी जरूरत है वहां उससे ऑपरेट करना। तो वी कम इन दैट स्टेट, वी कम इन दैट बैलेंस। ये होने के बाद फिर आगे का काम होता है जहां पे यू देन वर्क ऑन योर एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम पे जो काम होता है वो और ज्यादा इंटेंस, अगेन लाइक आई सेड, वो गाइडेड काम नहीं होता, वो मास्टर की प्रेजेंस नहीं होता है। सम ऑफ दीज थिंग्स इज व्हाट वी कॉल, उसके लिए दीक्षा मिलती है, बिना दीक्षा मिले ये काम नहीं होता है। तो वो लेने के लिए, वहां पहुंचने के लिए पहले पहले अपनी कैपेबिलिटी तैयार करते हैं, ताकि आपको वो दीक्षा दी जा सके और उसके बाद आप आगे उस पे काम कर सको। तो जब वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात करते हो तो वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात, वो हम बात करें क्योंकि हम यहाँ पे बात करें ना हेल्दी मैस्कुलिन, अनहेल्दी मैस्कुलिन, डिवाइन। पर उस स्टेट में, डिवाइन स्टेट में, मैस्कुलिन और फेमिनिन में कोई डिफरेंस बचता ही नहीं, दोनों की क्वालिटीज बिल्कुल सेम होती है। तो वो पता भी नहीं चलता है कि इतना इतना ब्यूटीफुल उसका जो ये होता है, इंटरचेंज होता है कि पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले आपको ना ये पता चलेगा कि हाँ, इस स्टेट में मैं मैस्कुलिन से ऑपरेट करूँ, इस स्टेट में मैं फेमिनिन से ऑपरेट करूँ एंड ऑल दैट। वहां पहुंचने के बाद कुछ डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। वो जैसे अर्धनारीश्वर का रूप, हाफ शिव हाफ पार्वती। अब तो इट्स बोथ, इट्स बोथ इंटरचेंजेबली गेटिंग यूज। सो डिवाइन स्टेट में दोनों एनर्जीज में कोई डिफरेंस बचता नहीं है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ ट्विन फ्लेम इज। इट्स द डांस ऑफ द टू एनर्जीज इन सिंक। जब तक हमें ये समझ नहीं आता है तब तक हम वो एनर्जी किसी इंसान में ढूंढ रहे होते हैं। तब तक हमने क्या होता है कि हम अपॉइंट कर देते हैं कि दैट पर्सन इज डिवाइन मैस्कुलिन, आई एम डिवाइन फेमिनिन, या आई एम डिवाइन मैस्कुलिन, दैट पर्सन इज डिवाइन डिवाइन फेमिनिन, व्हाटएवर। तो हम इन एनर्जीज को ना पर्सन के रूप में देखने लगते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि हाफ हाफ है, कि वो ये है मैं ये हूँ, उसका ये। जब आपको ये समझ में आने लगता है कि वो नहीं है, वो कभी था ही नहीं, that that whole thing was there to make you realize कि दोनों एनर्जीज आप ही में थी। ये जो डांस, ये जो बैलेंस करना था, ये खुद के अंदर ही बैलेंस करना था। जब लोग उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसमें पहुंचने के लिए अपने आप से 15-20 साल लोगों को लग जाते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तब उनको समझ में आता है कि वो जो यूनियन की बात हो रही थी, वो यूनियन की बात एनर्जीज की यूनियन की थी, पर्सन की यूनियन की नहीं थी। It was not about the physical union of two people. It was about the union of the two energies. And two energies were never existing in two people separately. Two energies were always existing in you. Two energies were always existing in the other person. Both of them realized कि इस पूरे setup के through we met ourselves only. We integrated the energies in ourselves only.
बट हमें अभी तक ये लग रहा था कि हम दो लोग आपस में इंटीग्रेट होंगे, नहीं, आपको खुद को ही खुद के साथ इंटीग्रेट होना था इस पूरी जर्नी में। आई डोंट नो इफ दिस इज मेकिंग सेंस और नॉट, इट्स Yeah, it बिकमिंग is. टू फार। हाँ, So the क्योंकि ये इतना Not to the- कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको समझने में इतना टाइम लग जाता है and it लोगों feels को। so good to listen to it, but actually जब आप करने जाते हो तो you know what all you go through. करने जाते हो So तो मैं it's वही so बोल रहा हूँ, difficult. अगर आपने कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस की है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग जर्नीज, मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग experiences that you could experience। अगर वो एंड्योर कर लिया और वो कर लिया तो what you will become is what the universe has always intended you to become, so now you can lead others। अगर आपको वही लीडर ही बनाने का ये डिजाइन था तो फिर यही है, you had to go through this fire to become that leader for others। And so The here words that the union is never the union is never the goal. It is about the union of the masculine and feminine within you. That's the end goal. It's not about the union with the Yeah, physical union with the other person. Okay. it's not about the physical union with the other person। वो अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो वो कभी गोल था नहीं इसका। Okay. So there are many twin flame couples who are doing a lot of work and they are doing it together as well, क्योंकि वो कंबाइन वे में उनका वैसा था कि उनको 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 वो काम कंबाइन होके ही करना था। पर But ये कोई जरूरी जरूरी नहीं है. नहीं होता है, ये Okay. कोई जरूरी नहीं होता है कि उनको वो काम कंबाइन होके करना है। लेकिन बहुत सारे ट्विन फ्लेम कपल्स कंबाइन होके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एंड वो कंबाइन होके कर रहे हैं, लेकिन वो कंबाइन होने के बाद भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम द डिवाइन फेमिनिन, दिस पर्सन इज द डिवाइन। वो टर्मिनोलॉजी छूट जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि ये डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन पर्सन नहीं था, ये एनर्जी, दोनों एनर्जी मेरे में हमेशा से थी। तो जब तक वो क्लिक नहीं होता है ना, तब तक वो हम टर्मिनोलॉजी को ऐसे यूज करते हैं कि यू ट्राई टू फाइंड कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ या मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ या वो क्या है। अरे आप दोनों में से दोनों कुछ भी नहीं हो, दोनों डिवाइन तो छोड़ो, अभी तो आप हेल्दी स्टेट में भी नहीं आए, अभी तो टॉक्सिक में हो। ना तो आप डिवाइन फेमिनिन हो ना दूसरा डिवाइन मैस्कुलिन है, दोनों बहुत दूर हो अभी तो उन चीजों से। I think this is the best so far, the best explanation I have understood and I have heard. So thank you so much. हम्म। लोग इसमें इतना टाइम वेस्ट करते हो ना कि मैं क्या हूँ, एम आई द डिवाइन फेमिनिन, एम आई द डिवाइन मैस्कुलिन, एंड दिस पर्सन दैट पर्सन। वो टर्मिनोलॉजी ही गलत है, इनिशियल स्टेज में तो वो टर्मिनोलॉजी ही गलत है, क्योंकि जितनी टॉक्सिसिटी ये कपल एक दूसरे को दिखाते हैं, यू कैनॉट कॉल देम डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। इट्स लाइक अगेंस्ट द रूल्स, इट्स इलीगल टू इवन कॉल देम लाइक दैट। हाँ, ये होता है कि इस जर्नी में it is usually the feminine who wakes up first। that is that is the sign, that is one very prominent sign, is the feminine wakes up first। Now again, you all know कि feminine doesn't mean female, the feminine could be in the male partner also। So जो भी जिसमें भी ज्यादा feminine energy है दोनों में से, वो पहले वेकअप होता है, वो पहले इस जर्नी को आइडेंटिफाई करता है। यूजुअली दे कम अक्रॉस अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस, ये अचानक से आता है। सो people get introduced to this kind of concept by chance। That is again another sign। um, you just get introduced to this। ये अपने आप ही कहीं ना कहीं से आ जाता है, ये बस आपके सामने आ जाता है कि ऐसा भी होता है दुनिया में, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो then they start exploring, and it is usually the feminine that gets introduced to this concept first।
मैस्कुलिन तो बहुत देर तक सोता रहता है. Yeah, the masculine questions why it is so hard and this and that, but he'll never get into that to understand the things. हाँ हाँ हाँ. तो मैस्कुलिन दो रीजन से काम करना शुरू करता है कि एक तो they get inspired by the feminine, the transformation of the feminine, so that inspires them, which is why I was telling to Deepika कि ये prominent sign है. Karmic relationship में your karmic partner will never feel inspired by anything you're doing. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. But twin flame में the partner will feel inspired, will feel कि वो भी कुछ करें, will value this relationship enough कि कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर दो लोग चाहे भले ही वो इनिशियली डर के फेज से हो, और हो भी सकता है क्योंकि टॉक्सिक स्टेट में है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों हैं ट्विन फ्लेम, लेकिन दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक फॉर ईच अदर, वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप इन द इनिशियल डेज. तो तो फियर के एंगल से आ सकता है कि ये मेरे से छूट ना जाए. They see that the feminine is working on themselves, is transforming, is becoming more graceful, more shining and all that. तो उसकी वजह से डर आ सकता है मैस्कुलिन में कि ये मुझसे छूट ना जाए कहीं, इसीलिए वो अपने ऊपर भी काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब सुपरफिशियल लेवल पे तो वो होल्ड नहीं कर पाएंगे. द फेमिनिन इज ट्रांसफॉर्मिंग. अभी चापलूसी करके बात नहीं बन सकती है, अभी वो भी कुछ सब्सटेंशियल करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं बस मीठी मीठी बातें कर ली, गिफ्ट्स दे दिए, ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, ये चापलूसी से अभी नहीं काम बने. तो मैस्कुलिन विल नो दिस कि अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग लेवल का है, ये डीपर लेवल का है, तो यहाँ पे मुझे भी कुछ करना पड़ेगा. तो they could feel inspired by that and they could start working on themselves. कार्मिक रिलेशनशिप्स में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो they feel कि they are already good. मतलब दे विल एक्चुअली फील कि हाँ तुम्ही में प्रॉब्लम थी, तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो हमेशा से ठीक था. तो दैट्स द कार्मिक रिलेशनशिप. they will not do anything. So they are always in denial, they will stay in denial. तो बस ऐसे ही होता है. फिर which second point? You said first inspired by transformation of feminine. So what was the second point? I don't think I've said any second point yet. That's the one I'm talking. So yeah, that's that one. And what I was saying कि they will get up and do something about it. So that will be an indication for you कि ये twin flame हो सकती है. If the masculine is also feeling inspired and wants to do something on themselves because they value the relationship. चाहे कितनी भी टॉक्सिक है, जैसे आपको लगता है कि ना रह सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, वैसे ही उनको भी यही लगता है ना रह सकते हैं ना छोड़ सकते हैं. तो एक फिर टाइम दोनों के लाइफ में ऐसा आता है जहाँ पे उनको ये लगता है ना तो रह सक रहे हैं ना छोड़ सक रहे हैं, तो अब इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें. लेट्स अब ना तो निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, तो कुछ तो करें अब इसके ऊपर. तो देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर गाइडेंस एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग, क्योंकि ऐसे तो नहीं रह सकते. ऐसे बहुत टाइम चला के देख लेते हैं लोग, 2 3 5 साल ऐसे ही चला के देख लेते हैं, तो उनको ऐसे तो हो जाए, शायद हो जाए ठीक, शायद हो जाए. तो फेमिनिन इज मोर ओवर गिविंग, मोर ओवर कंसिडरेट, ओवर केयरिंग, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव. सो जहाँ पे भी ओवर वर्ड यूज होते हैं वहाँ पे फेमिनिन टॉक्सिक हो चुकी है. तो मोर अकोमोडेटिंग, ओवर कंसिडरेट, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए. नहीं ठीक होता, उसी में टाइम निकल जाता है, 2 3 5 साल उसी में निकल जाते हैं. फिर एकदम से क्लिक होता है कि कुछ नहीं होने वाला. तो then she starts working on herself, and then the masculine also follows. Masculine usually follows. तो बस फिर ऐसे ही होता है. फिर उसके बाद फिर this journey then starts, and
goes on with on few iterations of both fine tuning for each other and coming into that harmony of the energies. Perfect. Thank you so much. No problems. Deepika, you have a question? Yes. So I just wanted to ask, see if at all everything says that it's a twin flame, and uh, since the feminine has already awakened, so ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस she works on herself and she takes care of her awakening and her growth. If the masculine hasn't awakened, तो वो क्यों energy लगाए, मतलब to make him awaken or to do something or to connect with that person. बट मैंने कहाँ बोला कि वो मैस्कुलिन को अवेकन करने के लिए एनर्जी लगा रही है, वो अपने ऊपर ही लगा रही है. आई नेवर सेड कि वो मैस्कुलिन को करने के लिए कुछ कर रही है. आई एम सेइंग मतलब कि getting उसको on देख that, के मैस्कुलिन अपने आप इंस्पायर होके करने लगता है. अगर सही में ट्विन फ्लेम जर्नी रहती है तो उसको hmm, देख के मैस्कुलिन खुद ही इंस्पायर होके करने लगता है. वो नहीं कुछ कर e- रही है, वो अपने ऊपर ही even काम if कर the रही both of them are not connected. है. यस, इवन इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड, यही तो एनर्जी कनेक्शन है दोनों में. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन. सो एनर्जेटिकली दे आर बाउंड टू ईच अदर. तो मुझे वही, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, अगर वो एनर्जेटिक कनेक्शन भी हटाना है, इफ आई डोंट वांट अ थॉट ऑफ, इवन अ थॉट ऑफ दैट पर्सन ऑन द बैक ऑफ माय माइंड, तो मैं क्या करूं? वो नहीं होता है. कुछ नहीं, कुछ नहीं. ये क्वेश्चन ही ड्रॉप करो. देयर इज नथिंग यू कैन डू. Can't we subdue that thought at least? नो. सबड्यू इन व्हाट सेंस? जस्ट एक्सेप्ट इट कि इसका कुछ नहीं कर सकते एंड मूव ऑन. इट इज बॉदरिंग यू राइट नाउ क्योंकि आप इसका कुछ करना चाह रहे हो. जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि इसका कुछ नहीं हो सकता, उस दिन वो चीज आपको बॉदर करना बंद कर देगी क्योंकि आपको पता है ये ऐसा ही है. अब पुट योर एनर्जी इन बेटर थिंग्स. Hmm. अभी फाइट कर रहे हो, फाइट करनी बंद करो क्योंकि ये फाइट करने लायक बैटल है ही नहीं. अभी So आंसर in this, ढूंढ रहे हो. देयर इज नो आंसर. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो आंसर ढूंढना छोड़ दो उस क्वेश्चन का. लेट दैट क्वेश्चन गो. so I have to let go of the attachment of my wish to convert it into something into 3D. Maybe that is what is bothering me. करेक्ट, करेक्ट. तो इसी को ही मैं इतनी देर से एक्सप्लेन यही कर रहा था कि बहुत सारे लोग इस आउटकम से अटैच हो जाते हैं और उसकी वजह से उनकी जर्नी और एलोंगेटेड हो जाती है This is the only क्योंकि reason ये why कभी I am आउटकम attached. था ही नहीं. Hmm. ये कभी आउटकम था ही नहीं इसका कि But यू हैव टू मेक इट कम ट्रू इन 3D. I mean, I know you will say again that कहीं ना कहीं कुछ कुछ पढ़ के knowledge gain कर लेने से नहीं होता है. But then what I have heard or read is that if at all they come in union, they become a power couple. So and power couple का फिर मैं energy मना अलग ही नहीं होता कर है. रहा हूँ They go into पर दीपिका, helping the world, transforming the world. हाँ दीपिका, मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा हूँ. ये भी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग को वापस सुन लेना. मैंने उसको मना नहीं किया है. मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सारी आउटकम्स में वो एक 10% आउटकम है. आप उस 10% को 100% मान के बैठ गए. नहीं, it's not that. मेरा what I am the feeling that I have is कि why am I not in the top 10, वो जो क्लास में टॉप करने का रहता है ना, because मुझे ऐसा लगता है कि somewhere, मतलब my the ultimate goal of my हाँ soul. तो आप करो ना अपना काम. तो आप हो या नहीं हो ये तो आपको टाइम बताएगा. बट ये अभी अगर आपको कैसे इन पता केस अगर चलेगा? मिल के करते तो वर्ल्ड जल्दी ट्रांसफॉर्म होता ना, वो जो पर आप गोल्डन समझे एज. नहीं ना, मिलके ये होता नहीं है ना ऐसा. आई एम नॉट श्योर कि आपने अभी तक कॉन्वर्सेशन फॉलो किया. ये ऐसे नहीं होता है, मिल के करने का नहीं होता है. ये इंडिविजुअल जर्नी ही है, तभी तो सेपरेशन होती है. नहीं तो आई सेपरेशन फिर अंडरस्टैंड अगर मिल दैट. के, तो आप दोनों को अपने अपने ऊपर ही काम करना है. ये मिल के करने वाला है ही नहीं. मिल के करने वाला अगर होता
तो ये डिजाइन ही ऐसा नहीं होता, तो मिलके करते ना, ये मिलके कर ही नहीं सकते हो, ये हो ही नहीं सकता है। these energies are so toxic, these energies are so toxic कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती हैं। इसकी जो इसकी जो कहानी है, हमारी हमारी कल्चर, वैसे तो ये बहुत सारे कल्चर्स में है ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट, I have heard चाइनीज, that in your जापानीज, रोमन। video. हाँ, Speak तो में भी उसमें है। हम जो मैंने कहानी उसमें बताई थी शिव पार्वती वाली, वो आपने हम्म। पढ़ी थी, वो सुनी थी वो हाँ हाँ कहानी? हाँ, सुनी थी। हाँ हाँ। तो वो एनर्जीज इतनी वॉलेटाइल, इतनी टॉक्सिक हैं कि वो एक साथ नहीं रह सकती हैं। यही तो होल, दैट इज द होल पॉइंट। अब आप क्वेश्चन ही वैसा निकाल के ला रहे हो, पर अगर वैसा हो जाए तो बढ़िया हो, बढ़िया है। लेकिन इस क्वेश्चन करने से आपको क्या मिलने वाला है? जो चीज, मतलब ये तो ऐसा ही हो गया कि अगर ये ना शेर के सिर पे सींग होते तो बहुत बढ़िया हो जाता, पर तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे? वो क्वेश्चन का क्या फायदा है? उसको उस डायरेक्शन में जाके क्या मिल जाने वाला है? जो चीज है ही नहीं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती। ये इंडिविजुअल करना है काम, इंडिविजुअल करके वो जब दो लोग केपेबल होते हैं वो आएंगे, पावर कपल बनेंगे, बहुत बढ़िया बात है। नहीं बनेंगे तो भी बहुत बढ़िया बात है, वो टाइम विल टेल। यू डू योर ओन वर्क। My only and only question remains is, if at all union doesn't happen, won't it affect my the goal of my soul, that is moksha, nirvana, getting merged with the higher self finally across इसका मैं lifetime? आपको आंसर दे भी दूंगा तो आपको वो आंसर मेरा पसंद आने वाला ही नहीं है ज्यादा, या क्लिक ही नहीं होगा। मैं तो आपको इसका Because I am बहुत attached इजीली to the एक वर्ड, outcome. एग्जैक्टली मैं आपको इसका बहुत आराम से एक एक वर्ड में इसका आंसर दे सकता हूँ, नो। पर वो आपको क्लिक ही नहीं होगा अभी। तो वो क्लिक उस दिन होगा जिस दिन आप ये जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज कि आपके सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, लेकिन आप देखोगे कि ओवर टाइम ये क्वेश्चंस ही ड्रॉप हो जाने वाले हैं। अभी जो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय, राइट नाउ, द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट इज कि आपके पास इसके ऊपर काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। That's the only option that you have. And once you go on this journey and you complete this journey and you finish this journey, फिर पीछे मुड़ के देखना और फिर देखना कि ये जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो अब ये क्वेश्चन बचे हैं क्या? अभी भी ये क्वेश्चन पूछना चाहोगे क्या? क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब हो, चाहे इस क्वेश्चन का जवाब यस हो या नो हो या कुछ भी हो, मे बी हो, कुछ भी हो, पर आपको तो ये जर्नी करनी है ना। राइट नाउ द मोमेंट, द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट फॉर यू इज not the answer to these questions, but to finish this journey, complete this journey. Then you will see. Okay. अगर सही में ट्विन फ्लेम कनेक्ट जर्नी पे हो, विच मैं आई एम नॉट सेइंग यस और नो, आई एम लिविंग दिस टू यू कि आप साइंस चेक करो, आप इवेल्युएट करो, और हम लेट्स मान के चलते हो, हम मान लेते, आई एम सेइंग कि हो, तो फिर तो और भी इम्पोर्टेंट है कि अपने ऊपर काम करो। फिर तो और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को इंटीग्रेट करो। इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास को। तो लोग जो 15-20 साल में बोल रहा हूँ जो लगते हैं, वो इसीलिए तो लगते हैं कि फाइटिंग विद दिस रियलिटी या फाइटिंग विद दिस थिंग कि मैं ही क्यों करूं, ऐसा होना चाहिए, उसको भी करना चाहिए, उसके साथ मिलके करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके 15-20 साल निकल जाते लोग। बहुत लोगों से बात की है, तो ऐसी बात नहीं है।
Baki, if you would have heard those conversations, then I have shared my personal experiences in there as well. So I don't want to spend time on those things, but उन 4 कॉन्वर्सेशंस में मैंने भर भर के अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की हुई। तो ये सब कुछ जो है, ये एक पर्सनल जर्नी है जो शेयर की है इस समय। पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो शेयर की है। तो आपको जो आंसर दे रहा हूँ वो कोई आंसर ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि कोई थ्योरेटिकल आंसर है। वो इस साइड खड़े होके आज ये आंसर दे रहा हूँ। व्हेन यू As सेड in, कि मेरा लाइफ पर्पस, जो आंसर आप मांग रहे हो कि फिर हमारा ये नहीं होगा, फिर हमारा वो नहीं होगा, तो हम से नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जो डर आपको आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। This is your insecure attachment style, your insecurities talking right now. okay. As in your own personal twin flame journey experiences. हाँ, आप सुन लेना ना उसमें। आपने सुनी क्या वो कॉन्वर्सेशंस? नहीं, फर्स्ट वीडियो मैंने देखा है, वो पूरा देखा है। बाकी भी देखना। हाँ, बाकी भी देखना। 4 जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो बहुत बहुत डीप लेवल पे हमने वो कॉन्वर्सेशंस की हैं, इसलिए आज मैं वो करना चाह रहा था कि उसके आगे की करें। सो लास्ट ईयर किया था हमने वो कॉन्वर्सेशंस। उस टाइम पे आई ऑल्सो वांटेड टू स्टार्ट अ गाइडिंग प्रोग्राम फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू ट्विन फ्लेम जर्नी। Many people were ready for it as well, पर टाइमिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स अलाइन नहीं हो पाए, तो फिर हमने वो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया। एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशंस तभी हुई थी क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे और ये सब कर रहे थे, एंड वी रिकॉग्नाइज्ड अ नीड फॉर अ गाइडेंस इन दिस एरिया। तो तभी ये सब कॉन्वर्सेशंस हुई थी। शायद वो कॉन्वर्सेशंस आप सुनोगे तो उसमें वो आपको रेफरेंस भी मिलेगा उस चीज का उसमें। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, बट वो हो नहीं पाया। टाइम अलाइन नहीं हुए लोगों से। ठीक है, ओके। सो गाइस, इट्स बीन किसी का और क्वेश्चन है क्या? बिकॉज आई नीड टू रैप दिस अप बाय 8, सो वी हैव 15 मोर मिनट्स। हु एल्स इज देयर? मैगी, यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर, यस। क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली मेरे को ये टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और मैंने वो होमवर्क नहीं करा जो आपने बोला था देखने के लिए, और जो मैं अभी देखूंगी। बट टू माय अंडरस्टैंडिंग, मैं बस थोड़ा सा इसको मतलब समराइज कह सकते हो। मतलब अ, जो आप बोल रहे हो, 2 कपल्स होते हैं, राइट? कपल्स की बात हो रही है ना यहाँ पर, जैसे ट्विन फ्लेम, जैसे जहाँ वो लोग सब कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, एक को प्रॉब्लम ही नहीं होती है, एक को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, एक में सब फॉल्ट्स दिख रहे होते हैं, एक को फॉल्ट दिख रहा ही नहीं होता, एंड इतना हो जाता है कि ना। हेलो हेलो। या आई एम लिसनिंग। या आई एम एंड लिसनिंग। मतलब इतने साल तक वो लोग कर रहे होते कि एंड रिजल्ट ये हो जाता है कि आप जैसे आपने कहा स्पिरिचुअलिटी तो इज वेरी टॉक्सिक, बिकॉज राइट नाउ आवर एनर्जीज आर वेरी टॉक्सिक, तो वो वर्ड नहीं, बट आप सेल्फ डिस्कवरी कह सकते हो। उस पाथ पे पहुंच जाते हो कि क्योंकि और कुछ तो समझ नहीं आ रहा होता, आपके हिसाब से आपने सब कुछ कर दिया होता है लाइफ में, ठीक है। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, क्योंकि मैं हर बार हाथ उठा रही थी, कोई सवाल पूछ रहा था और उनके थ्रू मेरे आंसर्स आ रहे थे, जैसे आप जो बता रहे थे। सो मेरे को ये जानना है कि ये ट्विन फ्लेम का कोई एजेंडा नहीं होता है बेसिकली, कि आपने कहा कि अगर आ, शेर के सर पे सींग हो तो बढ़िया है, लेकिन मतलब मुझे ऐसे बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके बारे में कि आप मतलब क्या कह रहे थे इसके बारे में, जैसे
इस जन्म में नहीं होगा तो मैं क्या फिर कह रहा था कि दीपिका वाज आस्किंग कि ऐसा हो जाए तो अच्छा नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाए, ये हो जाए, अगर हम साथ मिलके काम करें तो ये बढ़िया नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ हम्म, हाँ होगा, बट वो नहीं होगा। मतलब वो क्वेश्चंस बहुत ही तो इसका थ्योरेटिकल हैं एजेंडा क्या इन है? नेचर। मतलब जो ये हमारे साथ सफरिंग्स हो रही है, इसका एजेंडा क्या है? वो सब जानने के लिए तो आई विल रिफर यू टू अवर प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सब मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि वो बहुत बहुत लंबा टॉपिक है टू टॉक अबाउट। सो इवन अगर मैं उसको समराइज्ड वे में भी बोलना शुरू करूंगा तो भी आधा घंटा लग जाएगा मुझको उसको समझाने में। सो आई वांट टू रैप दिस अप बाय 8 मैक्सिमम। तो वो तो आप वहां देखो। वो मैं देख लूंगी। एंड मतलब जो ये सफरिंग्स फिर लिखी हुई है, यानी ये होनी है, जैसे इसके ऊपर रोके या मतलब ओवर एनर्जी के ये ऐसा क्यों हुआ और लॉजिक लगाना ये व्यर्थ है, राइट? ये वेस्ट है। अह, नहीं, फिर वही बात है ना, पहले पहले वो सुन तो लो, तब समझ में आएगा ना कि वेस्ट है या नहीं है। वेस्ट वो है, उसका जो क्वेश्चन है और आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफरेंट है। उसका क्वेश्चन उस एंगल से आ रहा है कि शी अंडरस्टैंड्स व्हाट दिस थिंग इज एंड शी इज सेइंग लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हो जाए तो अच्छा होगा, बट वो ऐसा होता नहीं है। सी यू नो माय केस, है ना? बट अब मैं ऐसे ऐसे उस पर आ गई दैट आई जस्ट वांट टू बी सबमिसिव। ओके, ठीक है, आई जस्ट वांट टू बी ओके विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज हैपनिंग हैंड्स ऑन, जैसे इन जनरल इन लाइफ, कि हाँ ठीक है, ओके, आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट, ठीक है, हाँ ओके फाइन, यस और नो, हाँ या एक्सेप्ट, ना, जाओ या रहो, ठीक है। हाँ, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। वो जो आप बोल रहे हो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, वो दैट अवॉइडेंट इज स्टाइल हाँ होता यू है। आर, दैट इज अवॉइडेंस एक्जैक्टली। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को उस पर काम नहीं करना है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि मुझे उससे फाइट नहीं करनी। हम्म, कि जैसे मान लो कि आपकी मदर इन लॉ एक सर्टन तरीके से आपसे बात करती हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप हमेशा यही क्वेश्चन, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों क्यों के आंसर फाइंड करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर, और वो क्यों के आंसर आपको कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि उस क्यों का एक सिंपल आंसर है, बिकॉज शी इज लाइक दैट। लेकिन वो आपको पसंद नहीं आ रहा आंसर, आपको कोई कुछ तो और आंसर चाहिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये हो, तो आंसर पसंद नहीं आ रहा, आंसर पसंद नहीं आ रहा तो फाइट हो ही जा रही, क्यों क्यों क्यों। एक दिन हम बोलते हैं ये क्यों की फाइट को बंद करो, इट इज लाइक दैट ओनली। अब वो हो गया, अब क्वेश्चन ये आ जाता है, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट। सो एक्सेप्टेंस डजंट मीन अवॉइड इट। यू लर्न के एक्सेप्टेंस मीन्स कि सामने वो वाला ऐसा ही ऐसा है। ही है। हाँ, सामने वाला ऐसा ही है, लेकिन अब आपको क्या करना है। हाउ आर यू गोइंग टू चेंज योर वेज और हाउ आर यू गोइंग टू अडेप्ट टू इट, क्योंकि वो तो वैसा ही है। कि जैसे बारिश सर हो रही मैं है, एक बारिश सवाल हो रही पूछना है, है। एक मिनट, जैसे बारिश हो रही है और एक इंसान रो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, दूसरा इंसान बोलता है अरे बारिश हो रही है, छाता लेके वो निकलेगा। खुश हो रहा है। और एक इंसान रोए जा रहा है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। दूसरा इंसान एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ बारिश हो रही है, आई पुट अ रेन कोट ऑन, आई टेक अ अम्ब्रेला। दैट इज एक्सेप्टेंस। द अदर वन इज इन अवॉइडेंस। वो एक्सेप्ट, वो डिनाइल में है, उसको बस कंप्लेन करनी है कि बारिश हो रही है। दूसरे वाले ने उस चीज को फाइट करना छोड़ दिया कि बारिश क्यों हो रही है, क्यों हो गई। अरे क्यों हो गई का क्या आंसर है। तो इसका मतलब कि मैं इसको फाइट कर रही कि ऐसे क्यों हो रहा है, बट मेरा पार्टनर, उसको कोई वो नहीं है कि हाँ ठीक है, लाइफ है, चल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं ठीक करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, बट उसको कोई वैसा नहीं है कि ये ऐसा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया लाइफ, तो मतलब वो सही है। क्या उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर उसने अडॉप्ट कर लिया है अपने आप को, तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट करके अडॉप्ट कर लिया है। आपने अडॉप्ट नहीं किया है, इसीलिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है। वो या तो अवॉइडेंस है या डिनायल है, विड्रॉल है।
आपने अडॉप्ट तो नहीं किया ना, अभी भी वो चीज परेशान तो कर रही है ना। जब तक वो चीज परेशान करती रहेगी, मतलब हम डिमिनिश उसके हो बारे में, गई, बट वो कहीं तो है, लाइक मतलब बोलेंगे जैसे 100 नहीं है तो मे बी 10% है, मे बी लेस देन दैट, बट डिमिनिश हो गई है हाँ जो वो थी। हाँ, तो ठीक है। तो फिर जो भी कर रहे हो जिसकी वजह से डिमिनिश हुई है, तो दैट इज गुड, तो वो करते रहो, और हो जाएगी, 10 से 20% हो जाएगी, 20 से 30% हो जाएगी, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू। मैंने ऐसे ही मतलब जब आप किसी और से बात कर रहे थे मैंने ऐसे ही कहा ठीक है फिर ये लाइफ खत्म हो जाएगी, बस सारा पीछा छूट जाएगा, एंड देन यू सेड हाँ, आप तो मरोगे वो फिर अवॉइडेंस, से जन्म लोगे फिर अवॉइडेंस है से ना। होगा। हाँ, और क्या, ये गेम खत्म थोड़ी होती है। लाइफ के जो लेसन हम सीखने हैं, जो हमको इवॉल्व होना है, वो इसमें नहीं सीखोगे तो फिर आ जाओगे, फिर से स्टार्ट हो जाएगी गेम, वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से छोड़ी है। थैंक यू सर, थैंक यू। How many times it has happened to us in this life only, people find problem at their work कि कलीग से नहीं बन रही है, मैनेजर से नहीं बन रही है, छोड़ के दूसरी जॉब ले ली। हनीमून पीरियड में शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा, 6 महीने बाद वही इश्यूज जो वापस से शुरू हो गए, फिर छोड़ के जाओ। लोग चेंज हो जाएंगे, उनके नाम चेंज हो जाएंगे, इवेंट चेंज हो जाएंगी, हमारे रिएक्शंस तो सेम ही रहेंगे। हमने सीखा थोड़ी है कुछ, हमने तो बस यही सीखा है कि उससे भागना कैसे है, उसको अवॉइड कैसे करना। हमने उसको टैकल कहाँ किया, हमने लर्न कहाँ किया, हमने इवॉल्व कहाँ किया। हमने तो यही सीखा ना, बस छोड़ दो, छोड़ दो ये जॉब, दूसरा ढूंढ लो, क्यों क्यों इतनी मगजमारी करनी है। अब सर मतलब पार्टनर चेंज होने से भी कुछ बदलेगा नहीं जब तक हमें जो कुछ सीखना बदलेगा है, नहीं, जो हम वो सीखना सीखेंगे नहीं, चाहते हैं। करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पार्टनर चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज, जो फियर्स हैं, आपको अगर वो पार्टनर भी मिल जाए जो आप चाहते हो, आप उसको भी टॉक्सिक बना दोगे, हम्म, क्योंकि आपको उसमें भी कोई ना कोई फियर और इनसिक्योरिटी मिल जाएगी कि ये इतना अच्छा कैसे, इसको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है किसी भी चीज से, ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये तो फेक कर रहा होगा, या तो ये होगा, या तो ये है वो है। आप उसमें भी कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लो। हम्म। क्योंकि हमें खुद ही सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में जीना आता नहीं है ना, हमें इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में ही जीना आता है, हम उसी को ही हमने अपना घर मान लिया है, उसी में ही जीना आता है, तो वैसे ही लगी रहती है। तो एक छोड़ोगे दूसरा मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, वो कुछ और तरीके से करेगा। अब देर इज वन लेडी हु वाज टॉकिंग टू अस दैट she um, so she met another person who's exactly the opposite to her partner, जो उसको चाहिए था, एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट है, लेकिन वो अभी भी उसमें भी फंसी है। उसको ये भी नहीं पता कि अब ये या वो दोनों में अभी भी नहीं चूज कर पाए, हम्म। जबकि वो मिल गया है वैसा, जो जो यहाँ लैक था वहां पे वो मिल गया है, लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं हो पा रहा। हाँ बिकॉज वो हम इनसिक्योर से इतने अटैच जो हो जाते हैं कि हम खुद जब ही सिक्योर इनसिक्योर हैं, चीज तो दूसरा कैसे हमारे अंदर सिक्योरिटी ला देगा। और दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती नहीं भी है। है, आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी इनसिक्योरिटीज और आपके फियर को एड्रेस करने की। ये पहली बात तो ये अच्छी तरह समझ लो कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने पार्टनर की इनसिक्योरिटीज और फियर को टैकल करने की, और उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपसे करने की, तो दोनों को इंडिविजुअली करना है। तो सर आप Majority of relationship issues are this way only, that two insecure people come together and they experience problem in their relationship, तो उनको लगता है relationship issue है। relationship issues नहीं होते, relationship issues बहुत कम ही होते हैं किसी में। majority of issues are कि दो लोग individually wounded हैं और अब वो एक दूसरे को wound दे रहे हैं, पहले से ही घायल थे, सर अब आई हैव अ आके एक क्वेश्चन। दूसरे को घायल कर।
लेकिन सर जब हम आपके वो कर रहे हैं जैसे ये कोर्स में फर्स्ट हमने ये समझा कि हमारे पेरेंट्स से हमें क्या कुछ मिले, राइट? फिर धीरे धीरे हमने अपने पार्टनर्स में देखा, अनस्टक में देखा, फिर हीलिंग में देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, मदर वुंड्स, फादर वुंड्स, हाँ, फिर हाउ ट्विन फ्लेम एंड एवरीथिंग एल्स। वो क्वेश्चंस पहले आप वो 4 कॉन्वर्सेशन सुनो तब आपको क्लिक होगा, बिकॉज यू डोंट हैव द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ दिस। हाँ, पहले वो 4 कॉन्वर्सेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो, क्योंकि इसके लिए बहुत बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है इस टॉपिक को समझने के लिए। हाँ, ओके तो वो सर, 4 कॉन्वर्सेशन जो मैंने बोली हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, सो गो थ्रू दोस वंस। यस सर, ओके। ठीक है guys, so let's wrap this up. I have something that I need to take care of, so I need to now stop this. So we will continue this conversation again. आज के लिए इतना ही करते हैं। All right. Good night, Thank everyone. you. We'll Thank you talk some other so time. much. हाँ, Thank thank you. you. Thank you. Bye. Good night, Akam. Good night, Akam.